आई होप मेरा वर्ड इंस्टॉल हो गया है। Pause professional. Tests alert. Core has joined the meeting. All. None. चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ड खोल लेते हैं। Windows R. Run dialog. Type the name WINWORD. विनवर्ड लिखा, एंटर WinWord. मार। Enter. Desktop. Folder view list view. Google Chrome. Folder view list view. Google Chrome checked. 5. Alt tab. Zoom meeting. Zoom. Alt tab. Post attendee dash Alt tab. Microsoft Office Professional Plus dash 2010. Microsoft Office Professional Plus dash 20. Alt F4. Zoom. Alt tab. Post attendee dash Zoom dash Google Chrome. Post at Alt tab. Zoom meeting. Alt tab. Document 1 dash Microsoft Word left parent unlicensed product right parent. Shift tab. Document 1 dash Microsoft Word left parent unlicensed by Shift tab. Next button to activate. Press tab. Cancel button to add space. Page 0 say alert alert. Some meet up rat and highlighted. All. AELLO space. This modification is not allowed. Page colon 1 of 1. Work. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज हमें सीखना था, फाइल सेव करना, ओपन करना और कुछ जॉस की कमांड। तो मैं पहले जॉस की कमांड रिपीट कर देता हूँ, मैं बता रहा हूँ सारे। आपको क्या करना है जैसे आपने नोट्स तैयार कर लिया या आपने कोई फाइल ओपन कर ली है, उसमें कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ वर्ड की ना। Alert 300. Windows alert 308. Search box. Desktop. Fold. Windows E. File. Shift tab. Preview level 0. Alert E level 1. This PC enter. This PC compute tab. Items view mode. Video. Local PNB left parent enter. Name. Date modified. 02. 1 item. 004. 05. For backup that credit 2. Alert and Mulberry sync has joined JM. JM first. This PC on a File Explorer. Items view list box read only. To move to an item, press the arrow keys. Alert. Galaxy J. Shift tab. Preview level 0 T. This piece enter. Working on the tab. Items view multi with local disk PNB. Local disk left parity. Enter. Name. Date not selected. Download. HC Pandy. 1 enter. HC Pan not selected. Beginner course of English. H1 item enter. Shell folder view. Items dot 1 item selected. General underline instructions underline for underline submission underline of underline documents underline 2904.1 item selected alert. General underline M photo 1 M signal HRD underline requirement under list of items in lab alert. Gap to whomsoever it may concern. Enter. Alert. सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही और बच्चे स्क्रीन रिक्वेस्ट के लिए वो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं की मैंने। tab post attendee dash alert Galaxy J2 Pro has left the meeting. Zoom meeting. Alert 3 unloading JAWS. Quit enter. Zoom meeting. क्या हुआ सर? होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग तूने बैन किया हुआ। मेरे को होस्ट में पहले बना तभी शेयरिंग होगी। नहीं हो बन सकते सर, को होस्ट ऑप्शन ही नहीं आता इसमें, को होस्ट वाला। तो शेयरिंग बंद है, शेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है सर, ठीक है, कोई शेयरिंग बात अलाउ नहीं नहीं सर, है। शेयरिंग वाला ऑप्शन ही नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ ये रहा शेयर स्क्रीन ऑफ ऑन ऑन कर दिया सर, अब हो जाएगा। जल्दी याद आ गया तभी। क्या हुआ सर?
गया मुझसे, मे भी स्क्रीन आ गई होगी सामने। यस सर, स्क्रीन आ गई, बस जॉर्ज नहीं बोला। जॉर्ज पता नहीं, जॉर्ज नाराज है आज। जॉर्ज नाराज हो गया सर। वो ही बोल देगा। सर ही नाराज है सर, जॉर्ज तो अपने आप नाराज होगा। सारे नाराज है। मैंने कहा सर ही नाराज हैं, जॉर्ज तो अपने आप ही नाराज होगा। ये भी है, मेरा लैपटॉप भी नाराज है आज तो। हाँ सर, कल गुस्सा हो गया सर आप और आपका लैपटॉप। कल भी इशू देखा है मैंने, स्क्रीन शेयर करने के बाद जॉस ऑन होने में टाइम लग रहा नेट का इशू आ जाता होगा ना सर। है। स्क्रीन शेयर होने के बाद कुछ तो है इसमें दिक्कत। या तो जॉर्ज सर पहले ऑन कर लो। नहीं, कमांड तो दे रखी है, उस ऑन होने में टाइम लग रहा है। एनवीडिया ही Top चला दो। professional meeting चल गया controls. चल गया। फाइन फाइन फाइन, हो Alt गया सर। tab. However, it may concern dash Microsoft Word left parent. Alt space menu bar system menu X leaving menu bar print view edit. ठीक है, मैंने अपनी फाइल खोल ली, मुझे पता था कि मैंने कहाँ सेव की है। मैंने अपनी लोकल ई ड्राइव बनाई हुई PNB के नाम से, वहाँ मेरी फाइल सेव थी। ठीक है, अब जैसे आपने नोट्स बना लिया या Alert Galaxy J2. कोई भी फाइल बना ली, अब जॉस के थ्रू उससे कैसे पढ़ेंगे? Alert Sam Core. अगर हमें Alert. लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो हम, अगर नीचे की लाइन से आने हैं तो डाउन एरो का यूज करके हम लाइन चेंज करते जाएंगे, जॉस पढ़ते जाएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ एक बार। Blank. 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 ठीक है, अभी इसमें कुछ Page नहीं 0 section 0. Blank. 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 Alt tab, meeting alt tab, alert, common variant alt tab, post attendee dash alt tab, to whomsoever it may concern dash Microsoft Word left parent unlicensed product right parent, alert 318 A2E80, to whomsoever blank, blank, this knock is to verify that MRM check. ठीक है, मैं ऊपर से नीचे के आ रहा हूँ तो मैं डाउन एरो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ऊपर से पेज नीचे आना है तो डाउन एरो यूज करके आप इसे, ऊपर से नीचे आना है तो आप डाउन एरो यूज करेंगे। अब अगर ऊपर वापस मुझे किसी लाइन पे जाना है तो मैं अप एरो करूंगा। Blank, blank. अभी पे वहां पे खाली है इसलिए ब्लैंक बोल रहा है, अप एरो आप करते जाइए। To whomsoever it may alert, ठीक है, टू होम में कंसर्न। अब हमें से याद रखना, अगर आपको किसी लाइन के स्टार्टिंग में आना है, लाइन के स्टार्टिंग में, तो आपको होम प्रेस करना है। आपको कीबोर्ड में होम होता है, ये होम प्रेस करना है। किसी लाइन के एंड में जाना है तो एंड प्रेस करना है। पेज के शुरू में आना है कंट्रोल होम, पेज के एंड में जाना है कंट्रोल एंड। ये तो हो गया आपके लाइन कैसे स्टार्टिंग में आएंगे और एंड में कैसे जाएंगे। अब जैसे आपको सिंगल सिंगल वर्ड्स पढ़ने हैं या कैरेक्टर्स पढ़ने हैं तो उसके लिए सिंपल सा है, आप या डाउन है तो आप उस लाइन पे जाएंगे। blank, blank. This knock is to verify that MRM Chandra has been. ठीक है, आप उस लाइन के शुरू में आके आपको कंट्रोल राइट एरो प्रेस करना है। कंट्रोल दबा के रखिए, राइट एरो प्रेस करेंगे। Knock is to verify that MRM Chandra has been working our institution left parent institute for the blind right parent. ऐसे आप सिंगल सिंगल वर्ड करके आप पढ़ सकते हैं। सिंगल वर्ड आपने पढ़ लिया, लाइन पढ़ना सीख लिया। ठीक है, एक कमांड होती है जॉस की, से ऑल की, इंसर्ट डाउन एरो। यानी आप पेज के शुरू में चले जाते, कमांड दे दीजिए इंसर्ट डाउन एरो। This knock is to verify that MRM Chandra is alert 085A7F1 is. ये भाई ये मैसेज एरर देगा। This knock is to verify that MRM Chandra has been working our institution left parent alert 318A. कि मतलब आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं जब आपको, मतलब जैसे आप आराम से ऑल की कमांड दीजिए इंस्टॉल, और चाहे उसमें 100 पेज हैं, जो कंटिन्यू ही रीड करते जाएगा। ठीक है, ये आपका से ऑल है। यानी सिंगल सिंगल वर्ड पढ़ना है तो कंट्रोल राइट एरो है, लाइंस पढ़नी है तो अप एंड डाउन एरो यूज कर लीजिए, और से ऑल की कमांड देनी तो इंसर्ट डाउन एरो। ये मैंने बेसिक कमांड आपको नेविगेशन बता दी MS वर्ड में। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप नोट्स तैयार करते हैं, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा तो सेंटेंस खत्म होने का जो लास्ट वर्ड अल्फाबेट है उसी के साथ आपका कॉमा या फुल स्टॉप लगेगा, देन उसके बाद स्पेस प्रेस करना हमेशा। बाकी जो इसकी और बहुत सारी कमांड्स हैं वो आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करके देखेंगे ना सेटिंग में, तो आप सीख जाएंगे। अब फाइल सेव करने के लिए सिंपल सा कमांड्स है, कंट्रोल S करना है आपको फाइल सेव करने के लिए। ठीक है, ये फाइल मेरी
ऑलरेडी सेव है तो इसलिए सेव नहीं होगी। मैं इसे दूसरा MS Word खोलता हूँ। Alt F5, Alt F4, meeting controls. Search box edit alert. Meeting controls. Windows R run dialog. INORD. WinWord. Enter. Cancel button to activate. Press space. Document 1. Shift tab. Cancel space. Page 0 section 0. Document. ठीक है, फाइल सेव करने के लिए आपको Ctrl S करना है। Control S. A T L L O hello. I A M M A E M M. Page 0 section 0. Control S. Alert. Aaron Janeda has joined the meeting. Alert from Drishti to सर एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्या ये कमांड NVDA पे वर्क करेगी? 100%। ठीक है सर। मुझे लगता है MS Word में कुछ एरर है जो टाइपिंग नहीं होने दे रहा है। Alt F5, Alt F4. Desktop. Windows E. 5. Not selected. Shift tab. Alert. 2 people have joined the meeting. T level 1. This PC opened. Enter. Tab. Items view. Documents. View pitch. Videos. The PNB left parent D. Local disk left parent. Enter. This PC. Gist of cellular. HC Pandy. KT. HC Pan. Enter. Items view list box. H M. Enter. Shelf full. Doc 1. General underline instructions underline. Doc 1. Enter. Cancel button to activate. Press spacebar. Doc alert. Shift tab. Cancel space. Page 0 section 0. Doc 1. Doc sprint. Alert. Aaron Janeda has left. Upper ribbon. Home. Escape. Leaving menu bar. Print view the document. // Alt F4. Items view multi-select list box. Doc 1 checked. 4 Alt F4. चलिए मैं ऐसे ही बोल देता हूँ MS Word में मुझे शायद कुछ एरर आ गई, ये टाइपिंग होनी है। Alert Galaxy J2. एक काम करते हैं Alert Galaxy J2. सर, आप गाइड करना सर, मेरे को, मैं करता जाऊंगा प्रैक्टिकल, आप इनको बोल के करवाओ। ठीक है, चलो तू खोल पहले MS Word। W R D. Alert list. Google Chrome 1 of it. आप सर म्यूट कर दो अपनी तरफ से, वैसे म्यूट मत करो, मतलब कंप्यूटर में F1 प्रेस कर दो, वो बंद हो जाएगा वॉल्यूम। Space. आपकी आवाज है। Enter. Document 1 Word. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. आवाज आ रही है सर? हाँ जी, यस सर, मैंने ओपन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहले आप इनको बता दो, फिर मेरे को बताना सर। ठीक है, MS Word हो गया तो आप सबसे पहले 2-4 लाइनें टाइप कर ले। वेलकम टू एवरीवन। ठीक है, तेरी स्पीच नहीं आ रही है टाइपिंग की? यस सर, कर लिया। Video provides a powerful way to help you. यस सर, टाइप कर लिया सर पैराग्राफ। आप ध्यान सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे इस अप एंड डाउन ऐसे तू लाइन सेलेक्ट कर लेगा, किस लाइन पे जाना, ठीक है? अब इस लाइन के शुरू में आ जाओ, होम प्रेस कर ले। यस सर। अब कंट्रोल, ठीक है? अब ध्यान रखो, जैसे आप लाइन के स्टार्टिंग में आए, जो पहला अल्फाबेट है वर्ड का वो स्पीच करेगा, क्योंकि इसने थोड़ी आवाज इसकी पतली दी, इसका मतलब ये कैप्स लॉक में है ये अल्फाबेट, ठीक है? तो आप यहाँ से कंट्रोल राइट और प्रेस कर एक बार। Provides a powerful way to.
ठीक है, आप ऐसे सिंगल सिंगल वर्ड पढ़ सकते हैं। सेव ऑल की कमांड है, इंसर्ट डाउन एरो जो मैं पहले बताई थी। अब हम आते हैं सेव, जो मैं बता रहा था सेव करने के लिए। ठीक है, अब कंट्रोल एस प्रेस करो। 3 inches. Save as absolute. यस ठीक सर। है, ऐसे करके ओपन करके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहले नाम पे ये नाम पूछता है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम दे दो, किस नाम से फाइल चेक करनी है। WELCOME space. बस नाम दे, केवल नाम लिखना है आपको। अगर ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है, पर हमें जहां मर्जी हम इसे सेव कर सकते हैं। तो शिफ्ट टैब करना एक बार गजानन। Save as dialog. Items view list. Name split button collapsed sorted. Ascending. ठीक है, अब जरा यहाँ से डाउन एरो करो। Preview level 2 local disk. C. Collapsed 1 of 1. प्रीव्यू पे आ गया सर मैं। डाउन एरो। Local disk. E. Local disk. F. Level 1 network collapsed 1. Level 2 local video ठीक है, इसमें pictures सारी music लिस्ट collapsed 1 of 1 level downloads documents desktop एक मिनट। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आ गई है, जिसमें भी आपको सेव करना है, या सी ड्राइव, ई ड्राइव, डॉक्यूमेंट, या आपने कोई फोल्डर बनाया होगा, तो ये पूरी लिस्ट आ गई। volume 100. यस सर। अपने मर्जी से कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इस पे एक बार एंटर मार दीजिए और टैप टैप करके सेव पे एंटर मारना है। Desktop 3D level 1 OneDrive level 0 level 1 level this PC level 2 desktop collapsed 1 of 1 level. जैसे मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ सर। Items view list file name save as type combo box save fields tree view metadata save the toolbar tools save but cancel save but note plus s. ठीक है, सेव बटन पे एंटर मार देना है। Welcome.docs Word. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 video provides a powerful. यस, हो गई सर। ठीक, अब हमें कंफर्म करना है कि सेव हुई या नहीं हुई, तो हम एक बार टाइटल चेक करेंगे फिर से। टाइटल इंसर्ट टी। Welcome.docs Word. वेलकम डॉट डॉक्स वर्ड। ठीक है, grade 25 grade 10. हाँ आप जी लोगों सर। ने ध्यान दिया होगा, जब हम वर्ड खोलते तो सब वर्ड पढ़ता है। अब लेकिन अब फाइल सेव हो गई, तो वहां पे हमारा नाम आ गया वेलकम डॉक्स। ठीक है, ये वर्ड की जो डॉक्स हर एक फाइल के पीछे लगेगा .doc। ठीक है, और जो विंडो मतलब 2010 के 7 से ऊपर होगा, उसके साथ एक्स भी लगा होगा। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हमें ध्यान है कि हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। ओके। फाइल बंद कर दो। Desktop list Google Chrome 1 of 15. अब हम सीधे डेस्कटॉप पे जाएंगे, विंडो ऑन करके डेस्कटॉप पे चले जाओ, और वहां पे हमें फाइल का नाम सेव किया है, डब्ल्यू प्रेस कर। W Windows 10 W this एक सेकंड Windows सर। W वो आई नहीं सर यहाँ पे। है आई नहीं नहीं, सर। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे हमें डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था, तो हमने फाइल मतलब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वापस हम कीबोर्ड खोल लो दोबारा। Desktop list Windows 10 update assistant date of 15. Space document 1 word Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. यस सर, ओपन हो गया। अब ठीक है, जो फाइल सेव किए थे हम उस फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, हम जो नहीं कि अगर हमें भूल गए कि हमारी फाइल कहाँ थी, हम भूल गए, तो कोई बात नहीं। MS वर्ड हम दोबारा खोलेंगे। अब कंट्रोल O करेंगे फाइल ओपन करने के लिए। Open tab selected open all tab O. यस सर। Recent tab recent document my name the advanced last week W old Microsoft Word. ठीक है सर, ओपन हो गया सर। ठीक है, अब कर दें कंट्रोल। अब जस्ट यहाँ Open पे हमें tab अपनी फाइल selected का नाम open पता all है, tab O. हमने टाइप कर यहाँ पे वेलकम। यस सर। लिस्ट आ गई होगी नीचे।
डॉक्यूमेंट से देख लो। एक सेकंड। तेरे वो नहीं आ रही स्पीच स्क्रीन रीडिंग की। Embed code for welcome.docs word. ओपन हो गई सर। स्पीच नहीं आ रही थी सर। सस्ता वो किसी को पता नहीं चला होगा। सर पता नहीं स्पीच ही नहीं आई एकदम बीच में, क्या हो गया क्या सीन। Paste the embed code. फाइल ओपन करना मैं यहाँ से सिखा देता हूँ। 13. कुछ सेकंड वेट कर लो। फाइल ओपन करना मैं यहाँ से सिखा देता हूँ। फाइल सेव यहाँ से टैप हो गया है, सेव नहीं हो रही। तब तक अगर किसी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं तो वो देख लेना, किसी मैसेज किया। JAWS Professional Document 1-micro. ठीक है, अब मैं फाइल ओपन करना सिखा रहा हूँ, वहाँ आवाज नहीं आती। सिंपल कंट्रोल ओ करना है आपको। Control O. Open dial alert 318A2E81 has left the meeting. ठीक है, कंट्रोल ओ किया। आप जस्ट आपको टाइप करना है जिस फाइल का नाम है। ATM. ठीक है, नीचे पूरी लिस्ट आ जाएगी इसमें ऑटोमेटिक। ये थोड़ा स्लो है सिस्टम। M. Alert 318A2E8. Escape. Page 0 view edit. Control O. Open alert Redmi has joined the meeting. Alert from Sapashma Oba to everyone. Alert cover Ahmed. ठीक है, फाइल पता नहीं कुछ एरर है इसमें, वर्ड है लैपटॉप कुछ वायरस हो। चलिए ठीक है, जस्ट मतलब फाइल ओपन करने के लिए आप MS वर्ड खोलेंगे, कंट्रोल ओ कमांड देंगे, अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप एंटर मारेंगे, फाइल खुल जाएगी। अगर आपको फाइल नहीं पता चले, जस्ट आपने कंट्रोल ओ किया, नाम लिख। Unloading JAWS. Enter. Office. Document. Office. Cancel button. Document. Cancel. Close all tabs. Do you want फाइल को सेव कीजिए दोबारा। document? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैंने कहा फाइल एक MS वर्ड दोबारा खोल, उसमें फाइल सेव कर दोबारा से। ठीक है, देखिए ये लो सर, मैंने एक फाइल ओपन किया। ठीक है, टाइटल चेक कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ लिखा है, विनवर्ड बोल रहा है, यानी ये फाइल अभी सेव नहीं है। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलेगा, डॉक्यूमेंट 3 है क्योंकि तीसरा पेज है। यहाँ पे मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ फाइल सेव करने के लिए, क्योंकि मेरा 16 है तो मेरे को लोकेशन भी सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको सुनना है ध्यान से। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे Video provides a powerful way. ठीक है, ये इसके बाद जो है dialog, file name, combo box collapsed, edit alt plus n selected video provides सर a फाइल नेम बोल रहा है, फाइल नेम लिखूं यहाँ पे मैं, R select A M लिख दिया सर फाइल नेम। टैप करके जहाँ सेव करने हैं, जो तेरे को पसंद हो वहाँ चले जाए, कोई भी ड्राइव या डेस्कटॉप या डाउनलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, C users Windows 10. C users मैं Windows 10. डेस्कटॉप पे सेव करूंगा अपनी फाइल। Address D desktop. आया, एंटर किया सर, एंटर कर दिया। अब ऑल्ट एस कर दूं सर? हाँ, ऑल्ट एस करो। ये शॉर्टकट कमांड है, सीधे सेव बटन में जाने के लिए ऑल्ट एस है। ठीक है, या तो हम टैप Docs Word, Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. ठीक है, अब फाइल को चेक कर रहा हूँ सर, इंसर्ट टी से। ram.docs word, ram.docs word, ram.docs word. राम के नाम से सेव हो गई, फाइल बंद कर दिया। ऑल्ट F4 से हम फाइल को बंद कर, फाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, कोई मैसेज नहीं देगा क्योंकि हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। Desktop list, Windows 10 update assistant 9 of 16. डेस्कटॉप पे आ गया सर। अब यहाँ पे हमें राम से प्रेस किया है तो हम R प्रेस करेंगे, वो राम बोलेगा। साथ में हमें सुनना है वो डॉक्स बोलेगा। R review meeting action items R ram.docs 2 of 16. ठीक है, राम डॉट डॉक्स। ठीक है, ये हमारी फाइल थी जो हमने वर्ड में बनाई थी।
इस पे एंटर RAM मार dot docs list item focus. RAM dot docs list item focused selected 2 of 16. ठीक है, ये ऐसे हम फाइल खोल सकते हैं। हमें पता है कि हमने कहाँ सेव किया है और हम वहीं से डायरेक्ट ओपन उस फाइल को कर सकते हैं। RAM dot docs Word. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 video provides a power. Paste in the खुल गया video सर। that best fits your document. ठीक है, तो आज हमने आज सीखा है, मैं उसे एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर जो क्वेश्चन होंगे वो हम ले लेंगे। कल जो सीखा था वर्ड खोलना, रिबन टैब्स हमने सारे सीख लिए। आज हमने एमएस वर्ड खोला, उसमें कुछ लिखना है, जॉस कमांड और सेव करना। तो सिर्फ सबसे पहले हम एमएस वर्ड खोल लिया, उसमें हमने लेटर लिख लिया जो भी लिखना है हमें। अब हमें अगर सिंगल लाइन पढ़नी है तो अप एरो डाउन एरो यूज करके हम पढ़ सकते हैं। डाउन एरो करेंगे तो हम नीचे वाली लाइन में आते जाएंगे वन बाय वन। हमें सिंगल वर्ड पढ़ने हैं तो पहले उस लाइन के शुरू में आ जाएंगे, होम प्रेस करके वो कंट्रोल प्रेस करके रहेंगे, बारी बारी से राइट एरो पढ़ते जाएंगे। पेज के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल होम है, पेज के एंड में जाने के कंट्रोल एंड है। हमें से ऑल, यानी हम चाहते हैं कि हम बार बार ये इसके कमांड्स ना दें, एक ही बार जॉस आराम एक कमांड दे दे और पढ़ते जाए। तो सिंपल सा है, पेज के शुरू में चले जाइए, इंसर्ट डाउन एरो, तो ये से ऑल की कमांड है। ये कमांड पेज जितने भी पेज होंगे सब पढ़ते जाएंगे। अगर कहीं पे लगता है कि आपको पॉज करना है तो कंट्रोल प्रेस कर दीजिए, वो चुप हो जाएगा, फिर वहीं से इंसर्ट डाउन एरो कर दीजिए, फिर वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फाइल सेव करनी है हमें, कंट्रोल एस, फाइल का नाम देंगे, टैप करके, जैसे जिसके बाद 2016 है वो टैप करके अपना ड्राइव सेलेक्ट कर सकता है, यानी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, डाउनलोड, डेस्कटॉप, जहां मर्जी हो। अगर 2007 यूज कर रहा है तो जस्ट उसे सिंपल शिफ्ट टैप करना है, डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेना जहां सेव करनी हो, टैप करके सेव बटन पे एंटर मार सकता है, या ऑल्ट एस डायरेक्ट कर दे शॉर्टकट कीबोर्ड से, फाइल सेव ऑटोमेटिक हो जाएगी। फाइल ओपन करना है, आप पता ही है आपको कहाँ सेव किया है। अगर डेस्कटॉप किया तो डेस्कटॉप पे जाइए, विंडो डी कीजिए, फाइल का नाम, उसका पहला लेटर प्रेस कीजिए, आप सीधे उस फाइल पे पहुंचेंगे। इस बात का ध्यान रखना, जब भी वर्ड खोलेंगे तो वर्ड के लास्ट में डॉक्स उसका जरूर सुनना है ध्यान से, क्योंकि हो सकता है नोट पैड या वर्ड पैड या एक्सेल की फाइल भी हो, तो हर एक का ध्यान से सुनना है। वर्ड के हमेशा वो डॉक्स बोलेगा, डॉट डॉक्स। वैसे आप खोल सकते हैं, अगर आपने सी ड्राइव या डी ड्राइव में खोली है तो आप विंडो ई करके माई कंप्यूटर खोल लेंगे, वहां पे भी आप ड्राइव से राइट और लेफ्ट करके जा सकते हो, तो अपनी फाइल खोल सकते हैं। या वर्ड खोल लीजिए, कंट्रोल ओ कीजिए, फाइल का नाम लिखिए, टैप करके वो चीज सेलेक्ट कर सर्च कर लीजिए जहां आपने सेव किया है, उसे जैसे उस पर एंटर मारेंगे, टैप करेंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी, अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए और एंटर मार दीजिए। चलेगा जानन? यस सर। क्वेश्चन तो किसी का है? हाँ, क्वेश्चंस सर, क्वेश्चंस लें या कुछ और भी कराएं सर? अभी अभी क्या 8-5 हुए हैं सर, कराना? 8-5 हुए हैं सर अभी। ठीक है, तो कुछ और करा लें, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, ये फोल्डर मैनेजमेंट वाला करवा दें? चल करा दो फटाफट। करा दो, ठीक है। तो आप यहीं रहना सर अभी, फिर क्वेश्चंस के जवाब देके जाना। तो हेलो गाइस, सो मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा आपको। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? ये कुछ नहीं करो। हाँ, तो गाइस मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, आपको सुनना है बस ध्यान से। सर ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया सर ने। आपके डाउट्स में भी, क्योंकि हम लोग कुछ भी एडवांस नहीं बता रहे हैं आपको, सभी बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं, तो इसलिए हम कंप्यूटर बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैं आपको बताऊंगा। सिखाने से पहले मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहता हूँ। आप जो भी इस प्लेटफॉर्म से कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपको ये सोच के नहीं सीखना कि आपको अपने लिए सीखना है, अपने काम के लिए सीखना है, आपका काम निकल जाए, दैट्स इट। नहीं, हमें पता है हमारी ब्लाइंड सोसाइटी बहुत छोटी सी है, तो आप ऐसा सीख के जाइए। क्योंकि जब भी मैं सीखता था, जो मेरे सर हैं आपके साथ हैं, जब मैं सर से सीखता था, सर ने मेरे को हमेशा एक ही चीज बोला, जब भी कंप्यूटर सीखना है ऐसा सीखो कि आप आगे जाके किसी और को सिखा सको। सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप यहाँ से जो भी मेरे से सीख के जा रहे हैं या सर से सीख रहे हैं, ऐसा सीख के जाओ। चाहे एक दिन में एक छोटी सी चीज, चाहे कॉपी करना सीखो, लेकिन उस कॉपी करने को ऐसा सीखो कि आपसे 1 साल 10 साल बाद भी कोई पूछे तो आप किसी और को सिखा सको। आप अपनी सोसाइटी को एजुकेट करेंगे तो ही आपका जो नॉलेज है वो लेने का फायदा है, और आपकी नॉलेज आपके पास होने का फायदा है। तो रिक्वेस्ट यू कि इतना ट्रेंड हो यहाँ से कि अपने
सहपाठियों को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आप जिनको नहीं आता है, जो ट्रेन नहीं है, उनको आप ट्रेन कीजिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोल्डर से। देखो, जब हमें फाइल और फोल्डर की बात करते हैं, फाइल्स के बारे में सर ने एक्सप्लेन किया, मैं फोल्डर्स के बारे में कर रहा हूँ। जब हम फाइल और फोल्डर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फाइल और फोल्डर होता क्या है, हम फाइल फोल्डर मैनेजमेंट से समझते क्या है, हम क्यों फाइल फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में पढ़े, हमें क्या जरूरत है। ठीक है, सपोज कीजिए आपको एक कंप्यूटर पकड़ा दिया गया, उस कंप्यूटर के अंदर आप एक एक किसी भी कंपनी के मैनेजर हैं, तो आपको एक डाटा दे दिया जाता है कि हाँ, आपकी कंपनी एक ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रही है, आपके पास अलग अलग कंट्री का डाटा है, और आपको एक रैंडमली किसी भी ड्राइव के अंदर डाल के दे दिया जाए, तो आपको नहीं पता लगेगा कि वो अगर सपोज आपको ढूंढना है कि मुझे अमेरिका का डाटा ढूंढना है, फ्रांस का ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे? तो उसको आप तभी ढूंढ सकते हैं जब आपको फाइल्स और फोल्डर मैनेजमेंट की नॉलेज होगी, तभी आप उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से देख रख पाएंगे, चीजों को आप अरेंज कर पाएंगे। आप कंप्यूटर को ये समझिए, सी हम एक एग्जांपल देखते हैं, आप कंप्यूटर को समझिए कि आपका घर है। घर जैसे आपके घर के अंदर बहुत सारा सामान होता है, उसको रखने के लिए आपको अलग अलग रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग रूम्स आपके पास होते हैं। जितने ज्यादा आपके पास रूम होंगे, उतना ज्यादा आप अच्छे से अपने डाटा, अपने घर के सामान को अरेंज कर सकते हैं। आपके पास स्पेस अच्छा होगा तो आप अच्छे से सामान को अरेंज कर पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट कंप्यूटर पे भी अप्लाई होता है। जितनी अच्छी आपके पास हार्ड डिस्क होगी कंप्यूटर की, यानी जैसे कि कंप्यूटर में 500 GB, 1 TB, 2 TB, 10 TB, ठीक है, जितनी अच्छा आपके पास स्पेस होगा, उतना अच्छा आप अपने कंप्यूटर का डिस्क मैनेजमेंट, ड्राइव मैनेजमेंट कर पाएंगे, और उतना ही अच्छा आप अपना फाइल फोल्डर मैनेजमेंट कर पाएंगे। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम समझते हैं कि फोल्डर बेसिकली क्या है। देखिए, फोल्डर को आप ये समझिए, फोल्डर इज जस्ट लाइक ए बॉक्स, एक बॉक्स की तरह है। जैसे कि आपको कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा बॉक्स दे दिया गया है, ठीक है, वो बहुत बड़ा बॉक्स जो है उसका नाम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हार्ड डिस्क है, आप उसको हार्ड डिस्क समझिए, ठीक है। अब उस बॉक्स को आपको, जैसे आपके घर, आप उसके साथ साथ एक और एग्जांपल समझिए कि एक एक आपकी जमीन पड़ी है, प्लॉट पड़ा है, ठीक है, वो बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन उस जमीन पे आपने एक मकान बना लिया, तो वो हो गया एक बॉक्स, एक बहुत बड़ा बॉक्स हो गया। उस बॉक्स के अंदर आपने छोटे छोटे कमरे, किचन, ये सारी चीजें बना ली, वो उसके छोटे छोटे बॉक्स हो गए, मतलब वो उसके फोल्डर्स हो गए। यही कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में भी है। हार्ड डिस्क इज जस्ट लाइक ए योर प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे आपने एक घर बनाया, घर यानी आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सारी ड्राइव्स हो गई। उन ड्राइव्स के अंदर आपने रूम्स बनाए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, ये सारे उनके रूम्स हो गए। उन रूम्स के अंदर आपने छोटे छोटे फोल्डर्स बनाए, जैसे कि आपके घर के अंदर रूम्स के अंदर अलमीराज हो गई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके फोल्डर्स के लिए फॉलो किया जाता है। इसी तरह से आप ये समझिए कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं, उस बॉक्स के अंदर अपनी फाइलें आप रख सकते हैं, उस बॉक्स के अंदर भी आप एक बॉक्स रख सकते हैं। बट उस बॉक्स के अंदर बॉक्स रखने के लिए डिपेंड करता है कि उस बॉक्स का मेन जो बॉक्स है उसका साइज कितना है, तो उस साइज के अकॉर्डिंग आप उस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर के अंदर आपकी एक हार्ड डिस्क होती है जो आपको स्पेस प्रोवाइड करती है। उस स्पेस को आप ड्राइव्स में कन्वर्ट करते हैं, ड्राइव्स में पार्टीशन कर देते हैं आप उस स्पेस की, C, D, E, F, G, H, जितनी ड्राइव आप बनाना चाहें उतनी आप ड्राइव बना सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्टोरेज कि आपका स्टोरेज कितना है, ठीक है। तो अब हमने ड्राइव्स बना ली, लेकिन ड्राइव्स क्या कर रही हैं, एक बड़ा स्पेस आपको दे रही है। सपोज आपके पास 1000 GB स्पेस है, 1000 GB को आपने अलग अलग पार्टीशन करके, सपोज 300, 300, देन 400, ऐसे स्पेस बना के 3 ड्राइव बना दिया, C, D और E। लेकिन अब ये तो बहुत ज्यादा स्पेस है, 300 GB तो बहुत है, लेकिन अब मेरे को एक फोल्डर बनाना है। तो देखो, फोल्डर आप किसी भी ड्राइव में कहीं पे भी बना सकते हो। हर जगह फोल्डर बनाने के लिए एक ही कमांड फॉलो होगा, Ctrl+Shift+N। अब हमने समझा कि फोल्डर हमें क्यों बनाना पड़ता है, क्या जरूरत होती है। अब हम समझते हैं फाइल। देखिए, फोल्डर बनाने के लिए आप Ctrl+Shift+N प्रेस करते हैं, आपका किसी भी लोकेशन में फोल्डर बन जाएगा। लेकिन फाइल के कॉन्सेप्ट में बहुत अलग है, इससे हटके है। क्यों? देखो, फोल्डर क्या है, आपको एक स्पेस के अंदर आप फोल्डर को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फाइल बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर आप फाइल नहीं बना सकते। अब हमें समझना है सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों होगी। देखिए बच्चों, जब हम फाइल बनाते हैं, फाइल का मतलब क्या है कि फाइल में हमें कुछ कंटेंट रखना है, ठीक है।
फाइल इन द सेंस, फाइल का मतलब ही ये होगा कि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका कंटेंट होगा। ये नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है कि कंटेंट आपका टेक्स्ट के रूप में हो। कंटेंट आपकी ऑडियो फाइल भी कंटेंट के रूप में ही आती है, वीडियो भी कंटेंट है, पिक्चर भी कंटेंट है, स्क्रीनशॉट्स भी कंटेंट है, एवरीथिंग इज कंटेंट। लेकिन उन सबको आप कैसे बना सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, ठीक है, एक लिखने वाली लिखी हुई फाइल, आपको कुछ डाटा अपना लिखा हुआ बनाना है, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब जैसे कि सर ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट में एक फाइल बनती है, ठीक है, तो अब वो फाइल कैसे बनी? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से। माइक्रोसॉफ्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमने टेक्स्ट को लिखा, फिर हमने उसको सेव किया, तो वो हमारी फाइल बनी। लेकिन ऐसी कोई शॉर्टकट कमांड नहीं है कि मैं डेस्कटॉप पे जाऊं और फाइल की कमांड दूं, जैसे हमने फोल्डर की कमांड दी तो फाइल बन जाएगी। फाइल का मतलब ही ये है कि आपका कंटेंट है, उस कंटेंट को आपको अरेंज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है। सपोज आपको कोई एक MP3 फाइल बनानी है, यही समझिए। अब MP3 फाइल बनाने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक जो हर कोई यूज करता है वो क्या है? MP जो रिकॉर्डर होता है, ठीक है, रिकॉर्डर को आपने ऑन किया, अपने आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड किया उसके अंदर और सेव कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? एक रिकॉर्डिंग फाइल बन के जो है .rac या ऐसे करके सेव हो जाएगी आपकी रिकॉर्डिंग फाइल। एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे, अभी उस पे आऊंगा मैं, ठीक है। तो ये भी ऑडियो भी आपका कंटेंट हुआ, इसको आपने रिकॉर्डिंग फाइल बना के सेव कर दिया, ठीक है। तो अब रिकॉर्डिंग फाइल हमें बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत हुई, जिसके लिए हमने MP3 रिकॉर्डर को यूज किया। तो उसी तरह से फाइल बना, टेक्स्ट फाइल बनाया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए। टेक्स्ट फाइल नोटपैड से भी बन सकती है, टेक्स्ट फाइल आपकी वर्डपैड से भी बन सकती है। एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा है। क्योंकि आप देखो, गाना प्ले आपको करना है, विंडो मीडिया प्लेयर से भी करते हैं, VLC से भी गाना प्ले करते हैं, पोर्ट प्लेयर से भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है हमें कौन सा कंफर्टेबल है, हम कौन सा यूज करते हैं। तो ये पूरा फाइल का कॉन्सेप्ट है। बस सिंपल शब्दों में ये समझना है, फाइल आपको बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, फोल्डर बनाने के लिए आप डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड से बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, जब हमने फोल्डर बना लिया, अब फाइल भी बना ली, दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज कीजिए कि एक जगह पे फाइल और फोल्डर दोनों को रख दिया जाए। मान लिया जाए कि C ड्राइव है आपकी, जैसे सपोज अभी एग्जांपल के तौर पे हम डेस्कटॉप पे थे। डेस्कटॉप पे मैंने आपको कल बताया था, पांडे सर ने आपको कल बताया था डेस्कटॉप पे, और डे बिफोर यस्टरडे हमने बताया था डेस्कटॉप के बारे में। तो उसमें फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सब कुछ रखा जा सकता है। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फाइल है या फोल्डर है? हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि नाम तो, सपोज राम के नाम से मैंने फाइल सेव की, लेकिन राम के नाम से मैं फोल्डर भी तो बना सकता हूँ, दोनों सेम नाम से होंगे, लेकिन मेरे को कैसे पता लगेगा? तो देखो, जब भी आप फाइल बनाएंगे तो वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे, मैंने बताया। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे तो उस फाइल के पीछे आपका एक एक्सटेंशन लग जाएगा। एक्सटेंशन को हमें समझना है, बस एक लाइन में एक्सटेंशन को आप समझिए। जैसे हर किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन के आगे सरनेम लगता है, मेरे नाम के आगे गजानंद मित्तल लगता है, मित्तल इज माय सरनेम। सो पांडे सर के नाम के आगे हेमचंद्र पांडे, पांडे इज ए सरनेम। तो इसी तरह से सरनेम इज जस्ट लाइक ए एक्सटेंशन कंप्यूटर की लैंग्वेज में। मैंने राम के नाम से फाइल सेव की, ram.docx लग गया। अब मैं docx देख के ये पहचान सकता हूं कि ये कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल है। इसी तरह से जैसे आप शर्मा देख के तुरंत पहचान जाएंगे ये पंडित हैं, मित्तल देख के तुरंत पहचान जाएंगे ये अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल के सरनेम को देख के, अगर आपको उसका पता है, एक्सटेंशन पता है कि ये किस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है, आप तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस सॉफ्टवेयर की फाइल है। .exls फाइल है, XLX वाली जो फाइल होती है वो एक्सेल की होती है, आप तुरंत देख के पहचान जाएंगे। .txt है, जिस फाइल के आगे .txt लगा है वो नोटपैड की फाइल है। .rtf है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे वो वर्डपैड की फाइल है। तो एक्सटेंशन क्या डिनोमेट करता है? आपकी फाइल कौन से सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती है, ठीक है। तो अब जहां पे फाइल और फोल्डर बहुत सारे रखे होंगे, फोल्डर के आगे कभी भी एक्सटेंशन नहीं लगा होगा। अब क्यों नहीं लगता फोल्डर के आगे एक्सटेंशन? क्योंकि वो इंडिविजुअली बनता है, उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। लेकिन फाइल को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर अपना एक्सटेंशन लगाएगा ताकि यूजर को पता लगे कि ये फाइल इस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती है, इस सॉफ्टवेयर की बनी हुई है। क्लियर? ठीक है।
तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। अगर दोनों चीजें कहीं रखी होंगी तो आप तुरंत उसका लास्ट नेम यानी उसका एक्सटेंशन देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी ये फाइल है या फोल्डर है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। अब बात आती है, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर हो सकते हैं, उस सब फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे सब फोल्डर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने एक फोल्डर बनाया गजानंद के नाम से, उस गजानंद फोल्डर के अंदर भी एक गजानंद हो सकता है, उस गजानंद के अंदर भी एक सर के नाम से फोल्डर हो सकता है, उस सर के अंदर भी एक राम के नाम से फोल्डर हो सकता है, उस राम में एक फाइल हो सकती है, उस फाइल के नीचे एक फोल्डर हो सकता है। यानी डिपेंड करता है कि वो आपका स्पेस कितना है आपके पास, उस स्पेस के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं करेंगे आज, बस मैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करता हूँ आपके लिए, फिर हम इसको बाइंड अप करेंगे। अब मुझे एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। तो सबसे पहले अब फोल्डर आप ड्राइव में भी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में भी, डाउनलोड्स में भी, सी डी ई एफ जितनी ड्राइव है सब में, देन डेस्कटॉप पे, टास्क बार को छोड़कर, टास्क बार में नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे जा रहा हूं मैं। Desktop list ram.docs 2 of 16. ठीक है, अभी 2 of 16 बोल रहा है ram डॉट डॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट एन कमांड देता हूं आपके लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, अब एडिट न्यू फोल्डर आएगा। Edit selected new folder. ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, एडिट सेलेक्टेड न्यू फोल्डर आया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है एडिट सेलेक्टेड न्यू फोल्डर। एडिट अलग है, सेलेक्टेड न्यू फोल्डर अलग है। मतलब यहाँ पे NEW स्पेस FOLDER लिखा हुआ है ऑलरेडी, और वो सेलेक्टेड मोड में है। अगर यहाँ पे जब भी कोई टेक्स्ट सिलेक्टेड मोड में होता है और उसके ऊपर अगर हम एरोज को छोड़ के कोई भी लेटर प्रेस कर दें ASDF, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे न्यू फोल्डर के नाम से ही फोल्डर बन जाए, मतलब मेरे फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर हो, तो आप तुरंत एंटर प्रेस कर दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, नाम लिखेंगे तो न्यू फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अगर इन केस आपसे गलती से यहाँ पे कोई एरो प्रेस हो जाता है, तो आप जो सर ने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया है करेक्टर बाय करेक्टर रीड करने का, वर्ड बाय वर्ड रीड करने का, वही यहाँ पे फॉलो होगा। लेफ्ट एरो राइट एरो से आप करेक्टर बाय करेक्टर रीड करके लास्ट में जाएंगे, देन बैक स्पेस से उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो सिलेक्टेड मोड में मैंने कोई लेटर नहीं दबाया, तो जैसे ही लेटर दबाऊंगा न्यू फोल्डर का जो न्यू फोल्डर वाला टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा और नया यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है सर के नाम से, Selection remove IR. सर लिख दिया, एंटर कर रहा हूँ। Sir 17 of 17. इसने बोला सर 17 ऑफ 17। ठीक है, पहले 16 थे, अब एक और यहाँ पे आइकन बढ़ गया, 17 हो गए, क्योंकि मैंने एक न्यू फोल्डर बना दिया। ठीक है, अब जैसे हमने जो फाइल राम वाली सेव की थी, आप चाहें तो उस राम वाली फाइल को उठा के इस सर वाले फोल्डर में भी डाल सकते हैं। वो कट कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो सर आपको नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाएंगे तब आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, और जब आप माइक्रोसॉफ्ट में हैं, वहां से फाइल सेव कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे भी इस फोल्डर के अंदर भी फाइल सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे सर ने बताया था, कंट्रोल S करना है, फाइल का नेम लिखना है, देन टैब करके ट्रीव्यू पे जाना है। ट्रीव्यू पे अप एरो डाउन एरो से आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड म्यूजिक, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। सपोज आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप आया, डेस्कटॉप पे आपको एंटर करना है, देन 2 बार आप टैब प्रेस करेंगे, आइटम व्यू लिस्ट आएगा, वहां पे आपको डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर्स होंगे उन सब के नाम दिखाएगा। तो जिस भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं उस पे एंटर करेंगे, देन ऑल्ट एस कर देंगे, आपकी फाइल उस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस फोल्डर पे एंटर कर रहा हूँ, Sir 17 of 17. इस पे एंटर कर रहा हूँ। अब देखो इसके आगे डॉक्स नहीं बोला। ठीक है, एंटर कर रहा हूँ। Sir window preview level 0 quick access expanded. 0 बोल रहा है, अभी खाली है, ये कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक फोल्डर और बना रहा हूँ, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहा हूँ। सेम कमांड यहाँ पे भी दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एन। Items view list new folder edit selected new folder. अब यहाँ पे भी एडिट बोल रहा है। अब यहाँ पे फिर मैं ए के नाम से फोल्डर, जैसे गौरव के नाम से फोल्डर बनाता हूँ। GORAV. ठीक है, गौरव के नाम से फोल्डर बना दिया। Gaurav 1 of 1. ठीक है, एक फोल्डर बन गया। 1 of 1 बोला मतलब एक ही फोल्डर है, इसके अंदर नंबर को ध्यान से सुनना है आपको।
जो नंबर बोलता है। फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट एन कर रहा हूँ, यहीं एक और फोल्डर बन जाएगा। New folder, edit selected, new folder. अब यहाँ लिखता हूँ मैं अनुज, A, select N, U, J, space. एंटर किया, Nudge 2 of 2. अनुज 2 ऑफ 2। मतलब अभी इस पूरे फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर हो गए। अब बस आप जब नंबर देखेंगे, नंबर आपको ये बताता है कि इस पूरे फोल्डर के अंदर कितने फाइल और फोल्डर हैं। सपोज ये बोल रहा है अनुज 1 ऑफ 100, तो इसके अंदर टोटल 100 फोल्डर्स हैं या फाइल्स भी हो सकती हैं, उसके बीच में इंक्लूड हैं। और यहाँ पे अनुज पहले नंबर पे है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मैं एक फाइल रखता हूँ, फिर दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा आपको। Fold, iTunes 12 of 7. R, review meeting action items for R, RAM docs 2 of 7. Recycle bin 3 of मैं उस फाइल को 17. कट करके और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ अपने फोल्डर में। Any video activators 5 of 7. Any video converter 4 of 7. Act, Firefox 11, Sir 17. ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ इस फाइल को। RAM docs 3 of. अब देखिए, Core of 1 of 3. अब हमें ये देखना है दोनों में। अब यहाँ पे फाइल भी है, फोल्डर भी है, बट दोनों को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइल है या फोल्डर है। तो कैसे करेंगे, बस ये हमें सीखना है, ठीक है। जैसे अभी गौरव है, ये गौरव का गौरव नॉर्मल बोलेगा, Core of 1 of 3. गौरव 1 ऑफ 3, ठीक है, कोई एक्सटेंशन नहीं बोला। Nudge 2 of 3. अनुज 2 ऑफ 3, कोई एक्सटेंशन नहीं बोला। RAM.docs 3 of 3. राम डॉट डॉक्स 3 ऑफ 3, मतलब राम के आगे इसने डॉट डॉक्स बोला, तो मतलब ये क्या है, एक फाइल है। ऊपर वाले दोनों क्या है, एक फोल्डर है, ठीक है। अब इन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बन सकते हैं, वो हम आगे की स्लाइड में करेंगे, ठीक है। एक और लास्ट एंड फाइनल चीज जो बहुत जरूरी है, ठीक है, जैसे कि Firefox, Sir 16 of 16. सर 16 ऑफ 16 बोल रहा है, मतलब मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब इस सर के नाम को मेरे को चेंज करना है। मतलब इस सर के अंदर सपोज कीजिए सर वाला जो फोल्डर है, इसके अंदर मैंने 100 फाइलें या फोल्डर्स रख लिए। लेकिन अब मैं इस सर को फोल्डर जो सपोज ये कीजिए, ये जो सर वाला फोल्डर है, इस पे मैंने अपने सर से रिलेटेड बहुत सारी फाइलें रख ली, ठीक है। जैसे एक फोल्डर मैं बनाता हूँ, उससे आपको बेटर समझ आएगा। टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन चीज क्लियर होगी आपको। Edit select A. इंडिया, India 17 of 17. ठीक है। अब मैंने इंडिया इसके अंदर रख लिया, इंडिया एक फोल्डर बना दिया। लेकिन अब इंडिया वाले फोल्डर के अंदर मैंने न्यूयॉर्क, अमेरिका, ये अमेरिका के जितने भी सिटीज हैं उन सबको मैंने रख दिया इस इंडिया वाले फोल्डर में। बट मेरे को ध्यान आता है कुछ दिन बाद, यार मेरे से तो गलती हो गई, मेरे को तो ये वाले इसके अंदर जो अमेरिका इंडिया का नहीं रखना चाहिए था, अमेरिका का रख दिया, इंडिया रखना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इंडिया का रखना है तो आप इसका इंडिया वाले फोल्डर का नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम अमेरिका रख देंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसका नाम रख देता हूं चेंज करने के लिए। अब पूरा कंटेंट आपको इसके अंदर से निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस फोल्डर का नाम चेंज कर देंगे बाहर से, अंदर का कंटेंट वैसा का वैसा ही रहेगा, अंदर फाइल फोल्डर्स वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको अगर इसका रिनेम करना है तो 2 तरीके हैं रिनेम करने के लिए। पहले आपका कर्सर का फोकस होना चाहिए वहां पे जिस फोल्डर को आप रिनेम करना चाहते हैं, उसके बाद वहां पे फंक्शन की के साथ F2 प्रेस करो या फिर एप्लीकेशन की करो। फंक्शन की के साथ F2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में F2 और किसी काम के लिए यूज हो सकता है, तो फंक्शन की के साथ करो। वैसे नॉर्मली अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो ओनली F2 करेंगे। तो फंक्शन की F2 कर रहा हूँ। Edit selected India. एडिट सेलेक्टेड इंडिया, ठीक है। अब वो भी सिलेक्टेड बोल रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट है, तो इंडिया की जगह अब मैं क्या कर देता हूँ, Apps lock. USA। Selection remove. U. Space S. Space. USA. USA हो गया, एंटर कर दिया। USA 17 of 17. अब देखा आपने USA 17 ऑफ 17, पहले भी 17, इंडिया को मिला के 17 था, सर को मिला के 16 थे टोटल। अभी USA का 17 ऑफ 17 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई आइकन नहीं बढ़ा, इसका नाम चेंज हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, फिर से इंडिया करना है तो USA पे फोकस लेके आऊंगा, USA 17 of 17. यहाँ पे एप्लीकेशन बटन प्रेस करूंगा, Context menu. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुला। या तो आप M प्रेस कर दें, डायरेक्ट रीनेम पे चला जाएगा, या अप एरो करके रीनेम पे जा सकते हैं। Copies. Create. Delete. Rename M. रीनेम M, ठीक है, एंटर करूंगा। Desktop list. Edit selected USA. सिलेक्टेड USA है, फिर अब इंडिया लिख दूंगा यहाँ।
कैपिटल है क्योंकि मैंने कैप्स को, देखो कैपिटल में हमेशा इसकी पिच थोड़ा सा हाई हो जाती है। Caps lock off. Sir, India 17 of 17. ठीक है, इंडिया 17 ऑफ 17। ठीक है, तो ये सारी चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक और चीज के साथ खत्म करता हूँ, बस लास्ट फाइनल है। आपने आपने जो भी फोल्डर या फाइल बनाया है उसका आपको साइज चेक करना है कि कितने MB का ये फोल्डर है, क्योंकि कई बार हम किसी के लिए कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन इनसफिशिएंट स्पेस दे देता है, तो हम चेक कैसे करें कि ये कितने GB MB कितने KB का है। ठीक है, तो सिंपल कमांड है, कुछ नहीं करना। जिस भी फाइल या फोल्डर का आप स्पेस चेक करना चाहते हैं कि ये कितना इसने स्पेस लिया हुआ है, उस फाइल या फोल्डर पे जाके आपको ऑल्ट एंटर करना है। दो तरीके हैं, या एप्लीकेशन मेन्यू करके अप एरो करके प्रॉपर्टी पे जाके एंटर करें, या प्रॉपर्टी की शॉर्टकट कमांड होती है ऑल्ट प्लस एंटर। मैं ऑल्ट एंटर कर रहा हूँ। India properties dialog. General property page type. File folder location. C. Users Windows 10 desktop size. 0 bytes size on disk. 0 bytes contain. ठीक है, इसने साइज बोला 0 बाइट्स, मतलब अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ KB की फाइल है तो 0 KB, KB की बहुत हल्की सी फाइल है तो इसने साइज बिल्कुल 0 बोला। ठीक है, कोई साइज नहीं है इसमें, खाली है ये फोल्डर। ठीक है, और कब बनाया गया इसका डेट भी इसने बताया, किस जगह पे आप, क्योंकि डेस्कटॉप पे जितने भी फाइल फोल्डर होते हैं वो हमेशा C ड्राइव में जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसने C ड्राइव बोला। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी को प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। तो अब हम फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत चीजें हैं, हाइड अनहाइड, ठीक है, लिस्ट व्यू, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इतना ही हम समाप्त करते हैं। 31 हो गए ऑलरेडी, टाइम हो गया है। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। पांडे सर आप हैं? सर, हाँ, पांडे सर अनम्यूट करो खुद को। अनुज, अगर सर को एक बार कॉल कर दियो, सर शायद इधर उधर चले गए होंगे। मैं तब तक गाय सबको अनम्यूट करता हूँ। गाइज आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। अभी तीन तीन ही लोगों ने हैंड रेज किया है, जिसका भी क्वेश्चन है प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए। हाँ, सबसे पहले सुभाष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुज आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास परमिशन है। सुभाष, ठीक है, सुभाष नहीं पूछना चाहते हैं। उसके बाद तुषार, तुषार आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। यस सर। सर हाँ जी, सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। यस सर। सर जैसे आपने बोला था कि फोल्डर बनाया था आपने, उसके अंदर आपने फिर बनाया था अनुज, गौरव और एक और फाइल बनाई थी सर। तो जी, सर जैसे फर्स्ट नंबर पे अनुज थी, सेकंड नंबर पे गौरव, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे गौरव और सेकंड नंबर पे अनुज। हाँ, देखो उसके लिए आपको क्या करना है, आइटम व्यू व्यू टैब्स में जाना है ऑल्ट V से। उसके बाद वहां पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाता है कि आप अपने जो फाइल और फोल्डर है उसको किस तरह से शो ऑफ करना चाहते हैं। जैसे आप उसको अल्फाबेटिकल शो करना चाहते हैं, आप उसको डेट वाइज शो करना चाहते हैं, आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं, बट मैं सारा कराऊंगा तो वो बहुत एडवांस तक चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। हाइड भी हो सकती है फाइलें, फोल्डर्स, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आई होप कि आप करके देखेंगे तो हो जाएगा, ऑल्ट V आप करना, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं 318। किसका है भाई? आप अनम्यूट करके खुद को पूछ सकते हैं। 318, कोई बात नहीं, नहीं पूछना चाहते, ओके। पांडे सर आप अनम्यूट करो खुद को, आपका हैंड रेज मैंने देखा अभी। पांडे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज आ रही है। आगे आगे आगे, कहाँ चले गए थे सर आप? ठीक है, राहुल, राहुल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हाँ जी, नमस्कार राहुल, सर। हाँ सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी, बोलिए।
हाँ सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ जम्मू से। और मेरा प्रश्न सर, ये शॉर्टकट जो कीज़ हैं एक बार फिर से उन्हीं को लेके है कि परसों सर ने बताया था जॉस की शॉर्टकट कमांड्स के बारे में, तो वो मुझे मिल गया था। लेकिन जो दूसरी शॉर्टकट कमांड्स होती हैं, जैसे आज सर ने बताया, जो जॉस के अलावा होती हैं, तो क्या कंप्यूटर में कोई ऐसा फीचर है कि हम इन शॉर्टकट कमांड्स को कहीं से जो है वो जान सकें, कोई कमांड परफॉर्म करके या किसी सेटिंग में जाके? नहीं, किसी सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर नेट पीसी से आप चलाते हैं या फोन पे कोई क्रोम ब्राउजर को ले लीजिए, कोई भी उसमें लिख दीजिए MS वर्ड शॉर्टकट कमांड, तो सारी मतलब 300 से ज्यादा कमांड्स है, तो सारे लिस्ट आ जाएंगी। जो मैंने खाली बेसिक 2-4 बताई उसमें सारी लिस्ट आ जाएगी, आप सीख भी सकते हैं। वैसे भी जो मैंने आपको कल इंसर्ट F1 बताया कि उस पर लिंक कीवर्ड कमांड्स है, मैक्सिमम कमांड्स वहीं पे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। विवेक अग्रवाल, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हेलो सर। विवेक, यस। सर मैं कल का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर ने बोला था कि एनवीडिया में भी जो इंसर्ट F1 वाला है वो वर्क करेगा, तो आज मैंने इंसर्ट F1 किया तो काम नहीं किया, लेकिन फंक्शन के साथ इंसर्ट F1 किया तो वो एनवीडिया लॉग व्यू बोल के एक विंडोज ओपन हो गया, लेकिन वहां पर मैंने कोई कीवर्ड कमांड का लिंक नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं ये चीज कल अपना लैपटॉप ओपन करूंगा, अभी बंद कर दिया, मैं खुद इसे करके दिखाऊंगा। जी जी सर। ठीक है जी। ठीक है, देन गैलेक्सी, आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। More Galaxy button. J2 Pro. Srishti. Characters. Comma. Comma. Default. Viveka. Audio. Zoom. Leave. हेलो यस। हेलो सर। Vivekaga. Audio. पूछिए Zoom. पूछिए, अपना क्वेश्चन Galaxy. पूछिए। Vivekaga. सर Sir, नमस्ते, मैं राजू बात कर रहा हूँ। सर हाँ जी, आपके हाँ जी। टॉकबैक की आवाज आ रही है सर। नहीं, टॉकबैक मेरे यहाँ से नहीं आ रही सर। नहीं, मैं किसको? सर को बोल। हाँ जी, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन सर लिस्ट व्यू से लेकर था, इसको आप अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो ये व्यू टैब में मिलता है या फिर हम कोई भी फोल्डर में खड़े वहाँ मिल जाता है? और सर आपने जो फाइल फोल्डर मैनेजमेंट ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो मुझे आई रियली लाइक इट। आपको बहुत सारा धन्यवाद। तो देखो, आइटम व्यू लिस्ट जो है वो आपको Alt+V कमांड आप देंगे, आपका फोल्डर डेस्कटॉप पे होगा तब ये Alt+V वाली कमांड वर्क नहीं करेगी, लेकिन और कहीं पे भी होगा, चाहे C ड्राइव में होगा या D ड्राइव में होगा। डेस्कटॉप पे आपका अगर फोल्डर है, लेकिन उस फोल्डर को अगर आप ओपन कर देते हैं, एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसके बाद Alt+V वाली कमांड करेगी काम, फिर वहां पे आप चेक कर सकते हैं। मतलब शर्त है कि एक विंडो ओपन होनी चाहिए, तभी आपकी ये कमांड वर्क करती है। ठीक है, ओके, तो थैंक आई यू होप। सर। सो देन गैलेक्सी J2 Pro, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। गैलेक्सी J2 Pro। ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। मनीष कुमार, आप पूछ सकते हैं। मनीष सर, मनीष सर आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। विजय मुखर्जी सर, आप हेलो भी अपने हेलो आप। सर। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ सर, जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ, मनीष बोल रहा हाँ हूँ जी, सर। हाँ जी। हाँ हाँ सर, ये अपने तरफ से भी एक बार म्यूट करना पड़ता है ना सर इसको? नहीं, हम लोग अच्छा कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप खुद से कर अच्छा लें तो बेस्ट है। अच्छा 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 अच्छा, वो मैं समझ नहीं पाता। पांडे सर, गुड इवनिंग सर। गुड और इवनिंग। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा सर फाइल फोल्डर से रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि सपोज सर मेरा कोई मनीष नाम का फोल्डर है, ठीक है? उसके अंदर मान लीजिए 10 फाइल्स है, ठीक है सर? तो मैं जब भी उस फोल्डर को खोलता हूँ सर, तो हमेशा मेरा जो माउस का जो कर्सर होता है, कर्सर का जो फोकस होता है सर, हमेशा वो लास्ट से स्टार्ट होता है, समझे सर? जैसे अगर 100 भी फाइल है या फोल्डर है तो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि ऊपर से स्टार्ट हो सर। तो ये तो कैसे, आपको क्या सेटिंग करना? कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग कुछ नहीं करना। मेरे ख्याल से जो आप वो यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं।
नहीं माउस नहीं सर, वो मतलब बटन से ही काम करते हैं, लेकिन उसका फोकस नहीं, हमेशा नीचे नीचे से नहीं स्टार्ट मैं होता है। ये पूछ रहा था, मतलब उसमें माउस है जो मेरा जुड़ा हुआ, अटैच है माउस? माउस नहीं सर, वो टच पैड वाला होता है, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं सर, हम बटन यूज करते हैं। नहीं, आप ठीक है, पर ये है कि जो माउस जो मतलब लैपटॉप में, जो अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। हाँ, तो माउस का जो मतलब कर्सर है, वो उसका फोकस वहीं पे है, तब जाके वो होता है। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आप ये फोल्डर खोल रहे हैं, होम बटन प्रेस कर दीजिए बस, सिंपल सा होम बटन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, यस आप यस। स्टार्टिंग में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। हाँ 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 हाँ, यस सर यस सर यस। और सर एक एक चीज और बताए थे सर आप, आप बताए थे सर कि अगर जॉस को हमको बंद करना है तो आप इंसर्ट F4 अगर प्रेस करते हैं तो जॉस बंद हो जाता है सर। हाँ जी, लेकिन सर नहीं हो रहा है सर बंद इंसर्ट F4 से। अभी है आपके पास, अभी है लैपटॉप? यस सर, लेकिन थोड़ा टाइम लग अभी सकता है सर, चार्ज में डाल दिए थे इसलिए मतलब चार्जर थोड़ा डाल, बंद। नहीं ऐसे हाँ तो हो पॉसिबल नहीं है। इंसर्ट F4 करेंगे, वो आपको डायलॉग बॉक्स बोलेगा, यू डू यू वांट टू क्लोज। अच्छा अच्छा, एक बार हम फंक्शन के साथ सर टेस्ट करके देख लेंगे सर, फंक्शन की के साथ हो सकता है हाँ, कि। इसमें हो नहीं, आपका आपका लैपटॉप कौन सा है? सर लेनोवो है सर, हाँ तो नहीं लेनोवो। फिर, हाँ ठीक है, फिर इसमें आपको फंक्शन की यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा सर अच्छा अच्छा फंक्शन के साथ ही हो रहा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने मतलब जिसके पास डेल और HP है, उसमें फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मेरे ख्याल से बाकी इसमें जरूरत पड़ रही है फंक्शन की। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो देन मच। विजय सर आप अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विजय मुखर्जी सर। ठीक है, विजय सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ यस सर। यस, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने बताया कि ड्राइव को जाकर के कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना स्पेस लिया है इस फाइल ने। ओके, एक बार सर दोबारा रिपीट करेंगे सर, कैसे मैं चेक कर सकता हूँ? जिस भी फाइल का आपको स्पेस चेक करना है, उस फाइल पे जाके आपको ऑल्ट एंटर बटन प्रेस करना है, उसकी प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे आप अप एरो डाउन एरो करके चेक कर सकते हैं। ओके ओके सर, ऑल्ट एंटर एन। बस, नहीं ऑल्ट एंटर, सिर्फ ऑल्ट एंटर प्रेस करना है, अप एरो डाउन एरो करेंगे, आपका वहां पे जाके चेक हो जाएगा। तो ये 38A, ये आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 38A, 318 कोई नहीं है। 7138 AD। सर बस इतने ही क्वेश्चन है आज सर। चलो ठीक है, फिनिश करो। तो आज तो इतने ही क्वेश्चन है। तो गाइस थैंक यू सो मच आज के लिए। देन मैं आपको सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जो हैंड रेज नहीं कर पाए। Audio now unmuted. सर आज का एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया था कि कोई डाउट है ही नहीं। Audio now unmuted. Audio now unmuted. चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू Mute सो my मच। audio. सर टेक्स्ट मैसेज में कुछ क्वेश्चन है, दे दूं सर? Mute my audio. Double tap to activate. पानी सर, सर चले गए हैं लग रहा है। हेलो ले हेलो, फटाफट ले ले। हेलो। हाँ जी सर, टेक्स्ट मैसेज में एक गाइज, एक मिनट में टेक्स्ट मैसेज के क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सर फोल्डर का यूज फाइल को रखने के लिए करते हैं। हाँ जी, फोल्डर का यूज फाइल को रखने के लिए ही करते हैं जी। फोल्डर के अंदर आप फाइलें ही रख सकते हैं। ओके, डोंट, कुछ लोग बोल रहे हैं डोंट गो, ठीक है। तो सर मेरा ही मैसेज फाइल, है, आ सर गया। फाइल, सर फाइल को रीनेम करने के लिए F12 प्रेस करते हैं। यस F2, F2, F12 नहीं, F2। सर, फाइल का पूछ रहे हैं सर ये। अच्छा, फाइल का पूछ, ठीक। यस सर। सर बहुत अच्छा क्लास एक्सप्लेनेशन, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो वो है, हाँ जी। हेलो, हेलो बोलिए बोलिए, कोई है? सर, माय क्वेश्चन इज जो कंप्यूटर की का जोड्स होता है और लैपटॉप का एनवीडीए होता है, इसमें हम जो कमांड होती है वो हम सेम यूज कर सकते हैं जोड्स और एनवीडीए में? हाँ, मैक्सिमम सेम है, मैक्सिमम कमांड सेम है। क्या
आप जॉस यूज कर रहे हैं या एनवीडिया, सबकी मैक्सिमम कमांड है, कुछ एक दो कमांड से अलग है, बाकी सारे सेम। आज जो कर रहा है वो सारे आप जॉस से भी कर सकते हो, एनवीडिया के थ्रू। ओके सर। तो हमें इसकी रिकॉर्डिंग कब तक प्रोवाइड हो सकती है? 2-4 दिन में आ जाएगी आपके पास। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी।